अच्छा, फैमिली में जब नए मेंबर का मतलब एंट्री होती है तो कैसे आपकी फैमिली में कैसे स्वागत किया नए सदस्य का? मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा। न्यू कास्ट। हाँ, okay. फैमिली में नया सदस्य, Family, न्यू yeah. मेंबर ऑफ द फैमिली। हाँ, No, Family Man, of course, ये season 3 है, but from season 1, season 2, the antagonist, श्रीकांत का जो opposite में character जो होता है, has always been a very powerful character. Season 1 में we had Musa and Sajid, and season 2 we had Raji, and so season 3 we wanted to up the stakes, and so that's why it took us a long time to come up with these characters, and we came up with the character of Rukma, which Jaideep plays, and the character of Meera, which Nimrat plays, and we kind of thought that finally we felt satisfied that we came up with the correct set of antagonists for Shrikant Tiwari. And I mean, one of the first people that we thought of casting for Rukma was Jaideep, and the only thing was we were hoping he has the dates and he has the interest and he wants to do the show, and so we met him, and I mean, here we are. जयदीप, आपको कैसा वेलकम मिला अगर मैं पूछूं इस फैमिली मैन पूरी सीरीज में? बहुत ही शानदार, अमेजिंग। ना सिर्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, बट वो एक नेवर फेल्ट लाइक दैट आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ फैमिली मैन एवर बिफोर ऑल्सो। सो वो एक जो फील लेवल जब आप आते हो, जब आप पहले दिन सेट पे पहुंचते हो, तो ऐसा ही लगता है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं से कनेक्टेड रहे हैं। तो और फिर जब आप इतना सुंदर लिखा हुआ आपको मिलता है कुछ, तो आपकी खुशी और बेहतर होती है, आप और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। दैट्स व्हाट हैपेंड। आप दोनों से सवाल है एक करके कि जब ऑलरेडी 2 सीज़न आ चुके हैं और तीसरा सीज़न बहुत ही अप लेकर जाना है और नए किरदारों को उसमें लाना है, तो जो विश्वास दर्शकों का था 2 सीरीज़ को लेकर, उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाना है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मतलब 2 पिलर्स बोलते हैं, वो आप लोगों का ही, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होंगी। आपको कैसे आप लोगों ने कैसे स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है, वो किस तरीके से डिसाइड किया? वैसे जिम्मेदारी तो है ऑलरेडी। सीज़न 1 सीज़न 2 इतना लोगों ने उसको इतना प्यार दिया। सीज़न 3 के साथ जब हम शूटिंग पे गए, वो जिम्मेदारी के साथ उतरना ही पड़ता है, बट आप अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले सकते उस चीज़ का। आपका काम है डायरेक्ट करना, आप डायरेक्ट करने आए हो, आप एक्टर्स परफॉर्म करते हैं। आसान भी हो जाता है जब इतने बेहतरीन एक्टर्स हो हमारे साथ, हमारे शो में एक से बढ़कर एक एक्टर है। तो खाली प्रेशर को मेंटेन करके आपको अपना नेचुरली जैसे आपको काम करना है वैसे करना है। बाकी तो जब राइटिंग इतनी अच्छी हो और बाकी हमारे जो राइटर्स और फिल्म मेकर डायरेक्टर्स राज सर, डी के सर हैं, तो उनके सपोर्ट के साथ आप चलते हैं और फिर होप करते हैं कि सब कुछ सही हो। My Hindi is bad, I'll stick to English. But the first obstacle, the most important obstacle होता है writing. So what is the story going to be for season 3? How are you going to keep it fresh? What new characters are coming in? How do you serve a nice meal for the third time? Is the challenge. And as a writer for me, that was the challenge. Uske baad then I was directing also this time, so that was additional pressure for me, because unlike Tushar, I don't have that technical exposure in terms of because he's been in the direction department for long. He's worked with us for a long time. So for him, I would think it was a natural progression. But मेरे लिए तो मैं बस एक ही फिल्म किया मैंने, that too in Tamil I did one film, my first film as a director. So now I understand how tough the job is. I used to, because as a writer I'll be on set and I'll be telling DK, why didn't you do this, why didn't you do that? But now the buck stops with you. So there was pressure on me, I would be lying, but वो नहीं था कि how are we going to deliver, because even now you can only hope. Is the script good? Is the story intriguing enough? Is the character journeys fascinating and entertaining?
you have to say yeah. After that, it's all about hope. And I really hope that people enjoy season 3 as much as they did season 2, if not more, like DK said. So. जयदीप, जब आपको इसके लिए अप्रोच किया गया तो सबसे पहला सवाल क्या आया था कि ऑलरेडी मनोज वाजपेयी हैं तो मैं अब इसमें क्या करूँगा, ये सवाल पूछा आपने? नहीं, ऑलरेडी मनोज वाजपेयी है तो इसी मैं क्या करूँगा, ये तो इसका उल्टा, अरे मनोज भाई ऑलरेडी हैं तो मेरे लिए तो और आसान हो जाएगा जर्नी करना। तो मेरा दिमाग में पहला जो थॉट आया था जब सर मुझे बता रहे थे थोड़ा रुकमा के बारे में, और जब टाइमलाइन मैंने इनसे पूछी थी, अच्छा हम अंदाजन ऐसे ही मैंने आइडिया कब शूट करने वाले हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब पता नहीं ये उस टाइमलाइन में शूट करेंगे कि नहीं करें। तो थैंकफुली वो टाइम वाज द फर्स्ट थॉट कि क्या मैं उस वक्त जब ये शूट करने वाले हैं विल आई बी फ्री, और मैं क्योंकि ऑलरेडी कुछ काम कमिट कर चुका था तो बस वो एक थॉट दिमाग में आया था। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि अरे मनोज भाई ऑलरेडी है मैं क्या करूंगा। ऑफ कोर्स मैं कुछ ना कुछ करूंगा, अगर मनोज भाई है जो कुछ करूंगा मेरे लिए हेल्पफुल ही होगा, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी made this playground for you very nice, it's not a fresh playground जहां आपको जाके खुद ही पिच बनानी है, खुद ही विकेट्स गाड़नी है। It's a nicely made pitch, so you just need to go and play. लेकिन जब हमने सुना कि आप भी इसका हिस्सा है सीजन 3 में तो हम बहुत चौंक गए कि अरे जयदीप भी है, मतलब 2 टक्कर ऐसे है, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हो जाता है कि अरे 2 लोग, मतलब अब तो क्या होगा इसमें। But that's the idea, na? That's the idea when because I was saying that we need to get the stakes high for Shrikant Tiwari. So when Shrikant is struggling from season 1 to 2nd, from the family, I mean away from the family, he's the man, and he's struggling with the family with very cute things or very naughty things or whatever. But this time, even the entire family is in danger. The most loved man, Spy, is the most wanted one. So that is the stake to, take up and high. So everyone needs that. The force against Shrikant Tiwari should be that strong. So yeah, that's the beauty of it. लुक्स के साथ बहुत थोड़ा कुछ एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया आपके। जी, लुक के साथ ये लुक वेरी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए क्योंकि मैं जब हम सोच रहे थे बैठ के कि जयदीप विल ये रोल में अच्छा लगेगा, जयदीप विल लुक गुड करके, फिर ऑफ कोर्स जयदीप तो वो टाइम पे ही हैड डन पाताल लोक एज हाथीराम 2-3 साल पहले कर चुका था, तो दैट इज़ द लास्ट लुक वी हैव इन माइंड, बट दैट इज़ द लुक ऑफ अ कॉप, एंड अपना मनोज वाजपेयी, श्रीकांत तिवारी का भी थोड़ा इट्स अ सिमिलर लुक, सो वी सेड बट वी हैव टू गिव हिम अ लुक दैट स्टैंड्स आउट लाइक जयदीप हैज़ नेवर डन बिफोर करके। बट एज इट टर्न्स आउट इन्हीं का गैलरी, इन्हीं का फोटोज़ में कहीं में देयर इज़ वन फोटो ऑफ हिम विथ लॉन्ग हेयर लाइक दिस, वन लुकिंग वेरी बैड लाइक दिस, ऐसे स्मोक आ रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। मतलब वो आप फोटो फ्रेम करके रखना चाहिए आपको, इतना अच्छा फोटो था। Instagram, and they saw it. It's a picture from somewhere in Ooty actually, and there was fog in background, and the hair was almost आधा चेहरा ढका हुआ है उसमें, बाल यहाँ तक हैं। So sir showed me that picture. मैंने कहा oh God, मैंने कहा ये ऐसा लुक चाहिए। Yeah, so that जिसने फोटो खींचे उसको थोड़े बहुत पैसे वैसे दूंगा मैं आप साले के जब 2 लोग साथ में करते हैं काम, जैसे आप राज और डीके जो नाम साथ में आता है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव से या किसी राइटिंग पे एज अ डायरेक्शन टकराव होता है, तो आप लोग कैसे लेते हैं? अगर आपके और दोनों के बीच में जब होता है, कुछ मैच नहीं करता है, तो किस तरीके से आप लोग उसको लेते हैं? ये तो होता ही रहता है, मतलब डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स तो होता ही रहता है। और क्या आप लोग फील करते हैं? सेट पर मतलब होता है, बट द इज फर्स्टली मैं और राज हम ये काम बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब बहुत साल पहले से कर रहे हैं, तो अभी तो वो थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है कि क्या कब क्या बात करूँ। वो अगर राज कुछ बोल रहे तो मुझे ऑलरेडी वो फिनिश करने से पहले समझ में आ जाता है क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो उसको समझ में आ जाता है, वैसा है। एंड वी आर मोस्टली इन सिंक। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो भी वो हम आपस में डिस्कस करके, आर्ग्यू करके, जो भी करके, जब तक एनीबडी एल्स एक्टर या टेक्नीशियंस या बाकी सबको आता है, एक वॉइस आता है कि ये है करके, तो उन तक ये नहीं पहुंचेगा। हमारा कॉन्फ्लिक्ट तो कभी भी
हम दोनों को छोड़ के बाहर नहीं पहुंचेगा ना। अभी क्या हो गया, तो अभी हमारा राइटर्स रूम ये सब तो अभी बढ़ गया है, सुमन भी आ गया है और भी राइटर्स है, तुषार भी बैठ जाता है बिकॉज वो डायरेक्ट करना है तो थोड़ा राइटर्स रूम में भी बैठना पड़ता है, तो सब लोग हैं, इतने लोग। एंड तो एट दिस पॉइंट इट इज़ सो मच ऑफ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट कि सबका एक एक आइडिया होगा, सबका ये होगा, खाली थोड़ा कंट्रोल करके पिक करके चूज करके जाना है बस। इट्स लाइक दैट। आई थिंक एनी फिल्म इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट इन एनी केस। मैं एक बात इस पे ऐड करना चाहूँगा कि इवन दो राज सर DK सर हैं और अब हम लोग भी हैं साथ में, बट उसमें क्या है कि हमारा प्रोसेस इतना डेमोक्रेटिक है एक तरीके से। आप अगर राइटर्स रूम में हो, आप ऐसा हायरार्की है कहने के लिए, बट काम करते हुए ऐसा कुछ नहीं है। आप पिच इन कर सकते हो, कोई भी पिच इन कर सकता है और बोल सकता है क्या है, और फिर हम लोग आपस में बैठ के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर होता है चीज़ों में, बट इवेंचुअली एक कंसेंसस निकाल के हम लोग फाइनली जो सही लगता है कि हम लोग को, वो आउटर वर्ल्ड को समझ में पता नहीं चलता, हम लोग आपस में डिस्कस करके वो करते हैं। और दैट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, बिकॉज राज सर DK सर ऐसे हैं कि वो दूसरों को अपॉर्चुनिटी देते हैं बोलने के लिए। क्या है, ऐसा कोई नहीं कि मेरे को ज़्यादा पता है तो मेरी सुनो, ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो उसमें काम करने में भी मज़ा आता है और कंट्रीब्यूट करने में भी बहुत ऐसा लगता है कि आपका कंट्रीब्यूशन इसमें हुआ है। जब सीरीज़ का नाम ही फैमिली मैन हो तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, तो जब अपने घर की बात आती है तो सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लोग सबसे पहले इनिशिएटिव लेना पसंद करते हैं? आपसे शुरुआत करते हैं। क्या क्या करना? जब घर में To your own family, what are the things सबसे पहला you want to have an initiative about? Anything like to provide, to whatever. पहले यू टेक दैट। Okay. आप बोले तो उनको मैं थोड़ा मुझे हाँ, तो मतलब आप कहीं कह रहे घर पे, अगर घर की बात है तो आप हाँ, कौन सा काम? सबसे पहले कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि मुझे सबसे पहले इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए? फिर वो कोई भी बात हो सकती है, चाहे बच्चों को लेके हो, चाहे वाइफ को लेकर हो, चाहे पेरेंट्स को लेकर हो, क्योंकि फैमिली मैन है तो सारी जिम्मेदारियां उसी पे होती हैं। हाँ, मतलब इनिशिएटिव का मतलब ये है कि देखो अगेन घर में भी तो डेमोक्रेटिक माहौल होता है ना, कि आप किसी चीज, घर का कोई भी इशू है या कोई भी समस्या है तो आप यू want to address it in a way that okay, this is something happening, so these are the options we should go for. And then of course you can't be, the dictatorship can't be there that okay, I will say this and you will do it. That's not gonna work. That's not, family doesn't work like that. That's, as family man you can see. Yeah. I mean, Shrikant Tiwari can't even dictate the youngest kid of the family. So there is always opinions in the family and you take initiative in terms of solving the problem. Okay, this is the problem or this is the issue. These are the options we can go for. And sometimes that if things are getting out of hand, you are like, okay, no, stop, let's see, this is the version we should go. So this kind of, otherwise वैसे भी ऐसी कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती है कि आप उसके लिए इनिशिएटिव लेने की जरूरत पड़े। लोग अपने अपने दम पे कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ये घर का है, इसमें ये अच्छा बाहर से कुछ लेके आना तो आई विल हैंडल इट बिकॉज आई एम ऑलरेडी आउटसाइड एंड दिस एंड दैट। ऐसा कोई इशू नहीं होता है घर पे जहाँ इनिशिएटिव लेने की जरूरत पड़े। इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव थिंग। पत्नी के सामने सरेंडर करना? बच्चे मेरे हैं नहीं पर्सनली, तो पत्नी के सामने, अरे वाइफ के सामने कुछ नहीं, सुबह से आप माफी मांगो और चलो अपना काम। आई एम सॉरी फॉर द डे, आई एम सॉरी आई वाज लेट, आई एम सॉरी। another important lesson from family man कि जितना भी इम्पोर्टेंट है आपका काम जो कर रहा है, मतलब श्रीकांत तिवारी है, इंटेलिजेंस ऑफिसर है, नेशनल सिक्योरिटी का काम कर रहा है, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, फिल्म बना रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, एक्टर है, एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। फैमिली के लिए टाइम देना भी इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि दिन रात काम पे ही फोकस करते रहो। एट सम पॉइंट द फैमिली विल ड्रिफ्ट अपार्ट। वही थोड़ा, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लर्निंग फ्रॉम फैमिली में। जॉब जितना भी इंपॉर्टेंट हो, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली पे भी फोकस करना चाहिए, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन पर भी टाइम देना पड़े, अदरवाइज यू बिफोर यू रियलाइज दे वुड हैव बिकम अडल्ट्स एंड दे विल नो कि वेयर वाज माय फादर इन चाइल्डहुड, वैसा हो जाएगा। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू वर्क लाइफ बैलेंस। तो जब इसमें नॉर्थ ईस्ट की जो झलक पहले एपिसोड में जो मैंने देखा है उसमें दिखाई गई है, तो मुझे पाताल लोक की भी याद आ गई थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ पर भी
थोड़ा सा कुछ कहानी उसी थोड़ा सा नहीं, काफी कुछ। काफी कुछ था, और पहले एपिसोड में भी फिलहाल मैंने देखा है। तो आपके लिए शूटिंग करना आसान था कि अरे मैंने तो इस यहाँ पर ऑलरेडी मेरी एक कहानी मैंने शूट की है और वापस मुझे वहीं का, तो किस तरीके से आपको ये बहुत अच्छा लगा कि मेरे लिए इजी अच्छा है? आई थिंक आसान सिर्फ ये था कि मुझे टेरेन पता चल गया था थोड़ा सा, कि आपको थोड़ा सा यहाँ थकावट जल्दी हो सकती है, लाइटिंग का थोड़ा सा वो कि बहुत जल्दी लाइट आती है सुबह, शाम को थोड़ी जल्दी चली जाएगी, बस उतना ही। वेदर आपको पता है उस जो जगह का, लोग पता है कि कैसे रिएक्ट करते हैं, स्पेशली व्हेन देयर इज अ क्राउड सीन और देयर आर सो मेनी पीपल इन द क्राउड। आई नो बिकॉज दे डोंट हैव दिस हैबिट। हमारे यहाँ बॉम्बे के जो भी हमारे साथ काम करते हैं, जितने भी जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, दे कैच एवरीथिंग लाइक दिस बिकॉज दे नो। वहाँ का जो क्राउड सीन्स होते हैं या कुछ हमें बहुत ज़्यादा क्राउड चाहिए होता है, उनको आदत नहीं है उस सब को करने की। तो आई हैड दिस आइडिया कि हाउ दे रिएक्ट। अदर देन दैट इट इज़ द सेम थिंग फॉर मी बिकॉज बट इट फेल्ट डिफरेंट व्हेन आई वाज देयर फॉर पाताल लोक। इट फेल्ट डिफरेंट कोहिमा और दिमापुर, बट दिस टाइम इट फेल्ट वेरी डिफरेंट कि अच्छा हाँ ये जगह सेम जगह थोड़ी अजीब लग रही है अब तो। बट अदर देन दैट इट्स आसान तो कुछ। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब आप रेड कार्पेट पे मनोज वाजपेयी से मिले थे, वो पैर आप उनका छूने, तो रेगुलर प्रैक्टिस है तो वो क्या मतलब वो आप थोड़ा सा हाँ क्या था वो आप बताएंगे कि वो क्या था कि आप उनको किस तरीके से देखते हैं, एक आइडल के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर, किस तरीके से आप उनको? नहीं, वो इंस्पिरेशन रहे हैं, मेरे जैसे हजारों एक्टर्स के इंस्पिरेशन रहे हैं, वो आज भी हैं। और इतना सुंदर काम किया इन्होंने पिछले जितने भी टाइम से 20-25 साल हो गए उनको। तो आप आई डोंट थिंक मेरी जनरेशन या मेरे से जूनियर जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं उनमें से कोई नहीं ऐसा जो उनसे इंस्पायर ना हुआ कभी ना कभी। तो वी रिस्पेक्ट हिम इन दैट सेंस। और वो तो वीडियो पे आ गया उस दिन। वो थोड़ा अजीब ये था, आप आई डोंट नो इसी की बात कर रहे हैं या वो अनुराग कश्यप वाले उसकी बात कर रहे हैं। इस वाले में जब फैमिली मैन का हम पोस्टर क्या नाम ट्रेलर लॉन्च कर रहे थे, उस दिन मुझे बोला गया कि आप जाओगे और श्रीकांत और रुकुमा का एक फेस ऑफ होगा, बट आई कुडंट फील इट व्हेनेवर ही स्टैंडिंग सेट पे। फिर भी आ सकता है, पर उसके अलावा कहीं आई कांट ग्लोरीफाई हिम बेसिकली। तो इट जस्ट हैपेंस एवरी डे। उस दिन वो वीडियो भी था तो वायरल हो गया, अदरवाइज इट हैपेंस एवरी डे। स्क्रिप्ट जब आप लिखे तो बहुत बीच बीच में कॉमेडी लाइन आ रही है, फिर भले एक लाइन के लिए आ रही है लेकिन माहौल को बहुत सूदिंग कर दे रही है। जैसे कि तो सेंचुरी बनाने वाला था, प्रोमो में है। तो ये एक जो आइडिया है कि सीरियस टॉपिक को भी मतलब श्रीकांत मजाक भी कर ले रहा है सीरियस सिचुएशन में। ये राइटिंग से रिलेटेड सवाल है, तो सुमन सर विल बी बेटर टू आंसर दिस। I'm guessing you're asking how you can put a joke in a serious situation. Yes. That's been our style. That's how we think of Raj, DK and me. Three of us we don't take ourselves too seriously, thankfully. When you're not, and you're trying to look for humor in everything, even when you're shooting, when it's night shoot and everybody is sleep deprived, there also will be cracking jokes at each other. So we are like that. So that's one. That is Joe. Whatever we write, there is humor. Sometimes when you're shooting the scene, the actors will, say, "Can I do it like this? Can I say this line?" So jokes have come from actors. So it's more of a 30% collaborative effort is there because everybody is on the same page. Whether it is Manoj or Jaideep, they are, and especially Sharib who plays JK, he is always ready with. We don't say cut. We'll be waiting for them to crack 1, 2, 3, 4, 5, and then we know that edit will. But you never know when a good joke will come, right? So, Yeah. So it's a combination of writing one and what happens, improvisation can also happen on set. देखिए ऐसा लगता है ना कि जैसे OTT पे या फिल्मों में हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो बहुत बार यह कैरेक्टर आता है कि एक मास्टरपीस हमारे पास है, एक मास्टरपीस है हमारे पास। तो ये जो सीरीज़ में और फिल्मों में जो चलन है कि एक है इंसान या एक कॉप है जो बचा सकता है,
तो ये वाला जो ये जो लेगेसी है इसको कह सकते हैं, ये क्या हमारे सिनेमा और सीरीज़ में मतलब मस्ट है, होनी ही चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि वो हीरो के ज़रिए जो एक मास्टरपीस हम कहते हैं कि वही बचा सकता है देश को, उसी के हाथों में सब कुछ है? वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली सच बोलना चाहते तो द फैमिली मैन थोड़ा उससे ऑपोजिट है. ऑफ कोर्स फैमिली मैन प्रोटैगनिस्ट है तो स्टोरी तो उन्हीं का होता है एंड ही ओनली ड्राइव्स द स्टोरी. लेकिन अगर सीज़न 1 से लेके आप देखने जाएंगे तो फैमिली मैन इज़ वन सच शो वेयर बहुत सारे लोगों को इम्पोर्टेंस है. एंड इट्स नॉट दैट श्रीकांत तिवारी का कैरेक्टर जाके हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है. एक्चुअली सीज़न 1 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूसरे लोग सॉल्व करते हैं. एंड हमने ऐसे भी किया कि श्रीकांत तिवारी जाके एक अटैक करना है, एक वॉर सीक्वेंस करना है, तो हम श्रीकांत तिवारी को नहीं भेजते क्योंकि ही इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट. पाशा करके एक कैरेक्टर था जो जाके गन्स लेके जा रहा था, और मेजर विक्रम करके एक कैरेक्टर था. सो वी क्रिएटेड अदर कैरेक्टर्स ताकि ऐसा नहीं कि हीरो है तो ये बात भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, फाइट भी कर सकता है, वैसे नहीं है. इन रियल लाइफ ही इज़ एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनका स्ट्रेंथ्स होता है, बट हाथ में स्नाइपर राइफल देके जाके सबको शूट करो मे नॉट बी हिज स्ट्रेंथ दैट वे. सीज़न 1 फैमिली एक्चुअली सीज़न 1 में तो क्लाइमैक्स में श्रीकांत तिवारी इज़ नॉट इवन देयर एक्चुअली. वो ही इनिशिएट्स द क्लाइमैक्स, स्टार्ट करता है, लेकिन दोनों एंटागनिस्ट लोग जो है साजिद और मूसा, वो अपने आप में आपस में फाइट करके प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है. तो इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट फॉर अस टू से थिंक ऑफ हिम एज अ कॉमन मैन, और कॉमन मैन को बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया. शार्प मैन, स्मार्ट मैन, इंटेलिजेंट मैन तो जहाँ तक कर सकता है उतना ही करना चाहिए. ऐसे नहीं कि हेलीकॉप्टर से भी जंप करेगा, स्विमिंग भी करेगा, सब कुछ भी. दैट्स वो अवॉइड तो हम कम्प्लीटली करते हैं. ये सीज़न में भी कभी भी से श्रीकांत, सीज़न 2 में श्रीकांत और राजी का कभी भी एक्शन हुआ तो राजी ही जीतेगी क्योंकि वो ट्रेंड कमांडो है, श्रीकांत नहीं है. सीज़न 3 में रुकमा एंड हिज आर्मी और एट एनी टाइम इज स्ट्रॉन्गर दैन श्रीकांत. मतलब तो हमेशा जीत ज़्यादातर इन्हीं को होता है. बट फाइनली विल द हीरो प्रिवेल, मतलब अपने दिमाग से, थोड़ा लक से, थोड़ा एक्सट्रीम एफर्ट से. सो दैट इज़ अ केयरफुली थॉट थिंग. दैट इज़ व्हाई फैमिली मैन फील्स लाइक अ कॉमन मैन. तो ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा लगना चाहिए कि अगर श्रीकांत तिवारी ये कर रहे तो हम भी कर सकते हैं. थोड़ा ऐसा फीलिंग आना चाहिए. आखिरी सवाल है मेरा कि रुकमा ये कैसा नाम है आपका? आजकल आपके नाम बड़े ही पाताल लोक में नाम जो था इसमें था बड़ा चुन के लिया जा रहा है, हट के, मतलब मालूम पड़े कि कैसा नाम है, मतलब. और दोनों कैरेक्टर आपके अलग अलग, वहाँ पर आपने वेट गेन किया था, इसमें एकदम फिट लग रहे हैं. कितना वक्त लगता है? नहीं, उसमें तो बहुत गैप है. वो तो अलग, वो उसी के लिए बहुत ज़्यादा वेट बढ़ाया जाता है, उसके अलावा उतना ज़्यादा वेट होता नहीं. बट जहाँ तक नाम की बात है, बताओ कहाँ से आया रुकमा? हाउ डिड यू कम अप विद द नेम? या नाम रुकमा इज रुकमा शॉर्ट है, रुकमांगदा वाज द नेम वी चोज बिकॉज वो थोड़ा अजीब नाम है. ये भी अजीब कैरेक्टर है. इसीलिए आपको पहले से थोड़ा आइडिया था कि एक नाम ऐसा होना चाहिए कि लोग सुनते ही लगे ये कैसे नाम है टाइप. बट देयर इज़ एक छोटा सा स्टोरी है. राज बोलता है, अभी मैं बोलता हूँ. बचपन में व्हेन वी वर ऑल प्लेइंग क्रिकेट, अगर कोई एक बड़ा अननोन पर्सन आ गया, ग्रेट बॉलर है, तो भी हम सब आउट होने वाले, तो उसका नाम पता नहीं, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं कि साला वो रुकमांगदा आ गया टाइप्स. इट इज़ लाइक अ नेम फॉर मिस्टीरियस. मिस्ट्री है उसके, मॉन्स्टर. इट इज़ लाइक सेइंग यार रावण आ गया, अभी बोल सकते हैं ना, वैसा रावण आ गया. वी डोंट नो व्हाट हिज नेम इज बट ही लुक्स लाइक ब्लडी रावण. आएगा तो हम सब मर जाएंगे टाइप्स. तो वैसे रुकमांगदा करके एक हमने रैंडमली बच्चे लोग बनाए थे, तो वो इनको दे दिया. रुकमा केम फ्रॉम रुकमांगदा. बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत फुल ऑन मस्ती. तो दर्शकों से आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि ये वाली जो सीरीज़ है सीज़न 3, इसमें भी एक वादा के वही मिलेगा जो अब तक के 2 सीज़न में मिला है? जयदीप, आई एम श्योर, मुझे लगता है उससे ज़्यादा मिलेगा. जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मेरी होप है कि जो भी हमने अभी तक सीज़न 2 सीजन्स में देखा है, जितना सुंदर तरीके से वो डिलीवर हुए, उससे ज़्यादा ही प्यार मिले इस चीज़ को. बहुत मेहनत से बनाया गया, बहुत वक्त लगा है, और आई जस्ट होप कि एवरीबॉडी लव्स इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।